السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض باتیں شور میں نہیں کہی جاتی، وہ خاموشی مانگتی ہیں، دل کی توجہ اور نیت کی سچائی۔ آج صحیح بخاری کی یہ احادیث ہمیں زندگی کے اس مقام پر لے آتی ہیں جہاں انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا میں وہی ہوں جو مجھے ہونا چاہیے؟ آئیے ان فرامین کو محض سننے کے لیے نہیں بلکہ خود کو پہچاننے کے لیے سنتے ہیں۔ نوف بکالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک کہ انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا؟ بقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتاؤ جو خدا نے خاص آپ ہی کو سکھائی ہے؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزرے، تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔
फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गज़ब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने ऐना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लक नहीं कहा गया, इसमें लक ज़ायद किया जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किब्रिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़ियात उन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत ने इस इल्म-उल-लदुनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ता करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशरम ने यह हदीस बयान की, इनसे सुफियान बिन ऐना ने पूरी की पूरी बयान की। सही बुखारी हदीस नंबर 122। एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है, क्योंकि हम में से कोई गुस्सा की वजह से और कोई गैरत की वजह से जंग करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ सर उठाया, और सर इसीलिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के कलमे को सर बुलंद करने के लिए लड़े वो अल्लाह की राह में लड़ता है। सही बुखारी हदीस नंबर 123। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमी जमार के वक्त देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमी से कब्ल कुर्बानी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुर्बानी से पहले सर मुंडा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप कुर्बानी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। इस वक्त जिस चीज़ के बारे में जो आगे पीछे हो गई थी आपसे पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 124। एक मर्तबा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे तो कुछ यहूदियों का उधर से गुज़र हुआ। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछूं। इनमें से किसी ने कहा, मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें नागवार हो। मगर उनमें से बाज़ ने कहा कि हम ज़रूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कैफियत दूर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत जो उस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई। ऐ नबी, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते। आश कहते हैं कि मेरी किरात में बमा आतवा है, बमा औते तुम नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 125। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तुमसे बहुत बातें छुपा कर कहती थी, तो क्या तुमसे काबा के बारे में भी कुछ बयान किया? मैंने कहा, हाँ। मुझसे उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि आए आयशा, अगर तेरी कौम दौर जहलियत के साथ करीब ना होती बल्कि पुरानी हो गई होती। इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यानी ज़बान कुफ्र के साथ करीब ना होती तो मैं काबा को तोड़ देता और उसके लिए 2 दरवाज़े बना देता। एक दरवाज़े से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाज़े से बाहर निकलते। बाद में इब्ने ज़ुबैर ने ये काम किया। सही बुखारी हदीस नंबर 126। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि लोगों से वो बातें करो जिन्हें वो पहचानते हों। क्या तुम्हें ये पसंद है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल को झुठला दें? सही बुखारी हदीस नंबर 127। एक मरतबा हज़रत मुआज़ बिन जबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़, मैंने अर्ज़ किया, हाज़िर हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ऐ मुआज़, मैंने अर्ज़ किया, हाज़िर हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहबारा फरमाया, ऐ मुआज़, मैंने अर्ज़ किया, हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस बात से लोगों को बाखबर ना कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये ख़बर सुनाओगे तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे और अमल छोड़ देंगे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतकाल के वक्त ये हदीस इस ख्याल से बयान फरमा दी कि कहीं हदीस रसूल छुपाने के गुनाह पर उनसे आखिरत में मुआख़ज़ा न हो। सही बुखारी हदीस नंबर 128। मुझसे बयान किया गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मुआज़ बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस बात की लोगों को बशारत ना सुना दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 129। उम्मे सलीम नामी एक औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले यानी कपड़े वगैरह पर मनी का असर मालूम हो तो। ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूदा हूँ, फिर क्यों उसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबा होता है, यानी यही इसके एहतलाम का सबूत है। सही बुखारी हदीस नंबर 130। या रब्बुल आलमीन, इन अहादीस को हमारे दिलों में ज़िंदा कर दे, हमारी ज़िंदगियों में अमल की सूरत में ज़ाहिर कर दे और हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा जो सुन्नत को समझकर उस पर चलते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया हो, दिल को सुकून मिला हो या कुछ सीखने को मिला हो तो प्यार और नरमी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ये खैर मज़ीद दिलों तक पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।